So that my daughter Drashti Singh. So we have written this paper. So I will read. I will just present the gist of this Gautam Buddha's uh, message, who was giving this message for the global peace and the social harmony for healthy life, peaceful healthy life, not only society or the world. So just I will only highlighted the gist of the Gautam Buddha message. As you know, the Gautam Buddhism religion is the oldest religion in the Asian continent. It is a very wonderful religion for the well-being of the society as well as the world. So Gautam Buddha has given the message for development, peace, social harmony, and resolutions of the conflict of the society. And Gautam Buddha religion itself is a symbol of peace and social harmony, an effective approach of resolution of all conflict of the society as well as the world, which is going on every time. So Gautam Buddha taught a lesson to the world people to develop the peace, social harmony, reduction of differences among the people and society on basis of caste, creed, religion, and others. If we avoid these things, naturally the social peace and harmony can be maintained in the society. So that is very, very important. So Gautam Buddha also gave the message to the message of love, brotherhood, fraternity, humility, and world peace. He taught the lesson to the world society to live together as a family and teach the people for development of global peace and social harmony for humanity and the world well-being. And Gautam Buddha also giving this an emphasis on the ahimsa, non-violence. As the Gandhiji itself also, he believed in the non-violence and truth and have a peace in the society and the heart of the people. So Gautam Buddha is a gospel of the peace, non-violence. Non-violence is way of the life uh, devoid all esteem of the lessons like anger, enmity, pleasure, pain. And true peace emanates from the non-violence, which is the irrational and mighty force. He also emphasized on the love and affection, passion in the society. People should believe each other. They live as a brother, huh? As a sisters, as a friends, in the society, as we live in the family. Because the whole world is a family. It is already highlighted in the in the traditional religions, in Indian philosophy, Indian religion philosophy. So naturally, the Gautam Buddha's teaching are very, very relevant, very important for the in today's world, and to maintain the peace and social harmony in the society as well as in the world. So his teaching are the good message for source of worldly peace, social harmony, brotherhood in the society. Indeed, Gautam Buddha has treated all human beings are the same. There is no difference. All are equal. And their birth and their death ceremony is the same, nothing else. But why we have differences on basis of caste, religion, and other things? The God is only one. So we human beings has created these differences, these boundaries on basis of caste, creed, religion, nothing else. If we avoid these things, naturally the social harmony and the world peace can be maintained. And he also taught the lesson of equality, brotherhood in the society for development, peace, and the harmony. And Gautam Buddha also taught us various teachings of peaceful life, such as unity, love, peace, brotherhood, social well-being, tolerance, cooperation, right paths of resolution of all the conflicts and social problems. If we people believe in these things, naturally, the whatever the social conflicts and in the society and among the peoples, it can be resolved. There is no further taking any and you can see the decisions. And if you people have a very healthy relations,
healthy relation and believe in each other and live as a brother, sisters, friends. Naturally, the global peace and the social harmony can be maintained in the society. And he also highlighted the on Panchasilas, as his Panchasilas, Gautam Buddha is giving this preachings and teaching to his of the people and the students and regarding this global peace and the happiness. So how they have to maintain happiness and peace? If there is a peace in the society and peace in the inside the man, peace in the world, naturally the happiness will be regenerate automatically. It is a internal part, and peace cannot be happiness cannot be purchased from the market and other things. It is internal. It differs man to man, and that's why he also highlighted this. We have to pray God and believe in humanity and brotherhood. Naturally, the global peace and social harmony can be maintained in the society and the world at large. And whatever the social conflict and the worldly conflicts as the uh, national, international, it can all be resolved if the people and have believe in the Gautam Buddha's teachings and teachings. Really, Gautam Buddha is giving a great message to the world. Even though this religion is originated in India, so that we have some of the very important things. The Sarnath in the itself is the preaching of this Gautam Buddha's. Creating all those Buddhists and the others people are they used to come to have a peace and to follow the Buddhism teachings and preachings. Really, it is very more relevant in today's worldly affairs to resolve all type of the problems. Naturally, if we follow the Gautam Buddha's preaching and teaching and which he is giving the message, naturally we can maintain peace, happiness, and brotherhood in the society among the peoples and itself in the among the countries, which is they are having the very bad intention to each other countries, and there is a lot of disturbance, disputed on the borders, and we already used to see in the newspaper and media, and this is the things. So Gautam Buddha's teachings and teachings are very important, which plays very vital role in the maintaining of the global peace and social harmony. So you can say that the Gulf countries there is a lot of problems in that disturbance. Even the people are religious, but they don't follow the religious teaching. Every religion has a good message, whether it is a Buddhism, whether it is Hinduism, whether it is Jainism, whether in other religion, in Christianity. But we forget the things. We just having this disputed and having the ill will to each other in the society and the family and the countries itself. That's why this is the problem. Everybody wants to be bigger and boss. If we don't feel that we are all equal, nobody is boss, nobody is the and the destroyer and creator except the God. God is the creator and he is a destroyer. Now you can see this Corona period. Now the science has failed. Everything is only the humanity, social harmony is very important. As Gautam Buddha itself giving this message. Can you hear me, Rajputji? Hello? Hello? So, सर आपकी आवाज आ रही सर? are you ना? Can you are listening ना? Okay. Yes sir. Okay. So now this is the COVID-19 pandemic. Now this is very important, very crucial situation that in this period the message of Gautam Buddha plays very vital role itself. What he is giving the message and thousands years ago to India as well as the world to have a global peace and the harmony. So this is the creation.
If the China has not created this one because China wanted to as a bigger boss in the world and over the rule in the world, and China created this type of virus, which is whole world is suffering. All people are suffering. It is a great loss of the humanity as well as the society. So even the China has there is a Buddhism, real, but they don't follow this one. This is the question. So we have to follow the teachings and teachings, whatever the message about the Buddha is giving. Naturally, there is no dispute, no social conflict and political conflicts. Every country live together as a brother and sister, because that's why we call it the global world. ग्लोबल वर्ल्ड है, सब पूरी दुनिया हमारी एक है, वही ग्लोबल वर्ल्ड है। जैसे कि हमारे रिलीजियस हिंदुज़्म में मैथोलॉजी में भी लिखा गया है, हम एक परिवार है, एक साथ रहना चाहिए। लेकिन दिस इज द क्वेश्चन इज दैट सब एवरीबॉडी इज पॉलिटिकल, wants to be very powerful and strong. That's why this the dispute is creating. China and America and other Western countries, Germany and that. But Indian is the followers. India is very it's a piece of country of peace and the country of religion. Gautam Buddha's land, Jainism and others, and we have very good religions. India does not want to have any type of dispute with others, but people in other country are disturbing. So that's why the message of Gautam Buddha really is very good and most relevant into this time in the Corona period itself. If we have a meant social community and the other and the brotherhood, naturally we can sort out these problems. And which is going on in the society. People are suffering a lot due to this lockdown. They have lost their jobs and families and shelters. This is the things. So we have to follow the Gautam Buddha message. Really, in a nutshell, I can say Gautam Buddha giving the very great message, not only in India, the whole world. Peace, maintain the peace and harmony, brotherhood, compassion in society and world at large. That's why we can maintain the global peace, harmony, the society as well as the world. Gautam Buddha is more relevant and suitable, peaceful, and harmonious society. He also believed in harmonious society, as his Pansila and the other teachings are concerned. Therefore, the Gautam Buddha's teachings plays a very, very vital role in development of the global peace, harmony, fraternity, healthy relations, positive thoughts, for peaceful society and congenial life. That's why if we follow that, then we can maintain the happiness and peace. Peace and happiness is really is very important for the healthy society. If the man is peaceful and naturally happiness will ultimately comes to it. So, with these words, I close and conclude my this paper. So any question, anything, so Rajputji, you can, is I can. Thank you very much. I extend my sincere thanks to the Rajputji and his teams and the organizers. They have given me chance to express my views. Still, I was trying to since last 2 days, but there was some technical problems, web problems. I could not connect. Okay, thank you, ji. Thank you very much. Rajputji, hello. Thank you, sir. Any question? किसी का कोई question हो कोई पूछे, then I am ready. Okay. किसी का भी कोई प्रश्न है क्या सर से? कोई भी कुछ पूछना चाहता हो या कुछ ऐड करना चाहता हो? This is most welcome. कोई भी कोई बात रखना चाहता हो सर के टॉपिक से लिंक?
अच्छा सर, मेरा एक प्रश्न है। Yes, please. बेसिकली बुद्ध के एक फॉलोअर हुए हैं नागार्जुन, Yeah, yes. और उन्होंने शून्यवाद दिया था। Yes. तो शून्य के जो शून्यवाद है उस पर आप थोड़ा सा यदि प्रकाश डाल सकें तो। जैसे ये आपने जिस रिलीजन है, जैसे उन्होंने जैसे गौतम बुद्ध के पंचशील का थे, और उन्होंने मेडिटेशन और उसको मेडिटेशन और ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी सोसाइटी में वैसे हम पीस लाएं। तो उन्होंने अपने जो डिसिपल्स थे, तो उनके जो शिष्य थे, उनको भी बताया था। और मेडिटेशन से थ्रू मेडिटेशन के थ्रू हम कैसे शून्य में जा सकते हैं और कैसे वर्ल्ड को और अपने को पीस रख सकते हैं। पहले इनर पीस होगी, जब शून्य में जाएं, जब भी बिल्कुल जैसे मेडिटेशन करते हैं, चाहे मेडिटेशन कैसे भी करें, वो मेडिटेशन का ये नहीं कि हम अपना एक आसन लगा के करें, वो भी हम बेड पे लेटे हुए आराम से रिलैक्स में जब भी हो सकते हैं। जब भी हम किसी चीज को किसी थॉट्स में, रिलीजियस थॉट्स में जाएं जिसको हम बिलीव करते हैं, चाहे बौद्धिज्म हो, चाहे किसी कोई भी हमारा रिलीजन हो, उसके बारे में सोचे और एक मेडिटेट करके और बिल्कुल दुनिया से तो कट जाएं बिल्कुल, और उसमें शून्य में चले जाएंगे तो सब हमारे अंदर जो इनर पीस है, जो हमारे अंदर जो इलविल है, वो खत्म हो जाएगा और एक भी फील सेल्फ कंटेंटेड और सेल्फ सेटिस्फेक्शन। और वैसे तो उन्होंने काफी उनका रिलीजियस है, वो है टीचिंग्स दिया है। और मैं जस्ट उनकी जो नटसेल हैं गौतम बुद्ध जी के, उनको ही मैंने हाईलाइट किया है। हाँ, मतलब उनके एक्चुअली काफी सारे अलग अलग फॉलोअर्स हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार से उनकी टीचिंग्स और उनको दिया हुआ है। हालांकि जो मैंने थोड़ा बहुत तो उनको रीड किया है, तो उसमें उनकी जो टीचिंग्स थी गौतम बुद्ध की और महावीर स्वामी की भी, तो ये टीचिंग्स इनमें से काफी सारी चीजें जो है वो हमें जो पतंजलि योग शास्त्र जो है और गीता, हमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मतलब कॉमन है या बाहर से ली गई। यस यस, विनर है। वही उनका जो मैसेज है, सभी बेसिकली सभी रिलीजन का तो मोटो सबका ये सेम होता है, लेकिन हम लोग क्या है अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट से हम रिलीजन को मिसयूज करते हैं, उनके टीचर्स को फॉलो नहीं करते। कोई रिलीजन नहीं होता है, चाहे इस्लाम हो, चाहे जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, any religion has given very good teachings to the society, to people, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं करते अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, चाहे कोई भी। हेलो जी मैम, आप कुछ पूछना चाह रही थी? हाँ सर, मैं डॉक्टर पुष्पा रमेश बोल रही हूँ, माता गुजरी कॉलेज से। हाँ हेलो सर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है मैम। हाँ सर, मैं भी बस यही कहना चाहती थी कि जैसा कि सर का वक्तव्य था और आपने भी इसके पहले पीस के संबंध में जो हमको जानकारी दी, तो वाकई में सर यदि हम सभी यदि गीता को फॉलो करें, मतलब गीता को पढ़ें या अपने घर में परिवार में बच्चों को भी, जो अभी आधुनिक समय के जो बच्चे हैं, हम उनको यदि गीता सार बताएं, तो वाकई में उसी में सब कुछ छिपा हुआ है ना। व्यक्ति को अपने आप में शांति और ये सब चीजें, खुशी, मतलब ये छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में फील होने वाली बातें हैं। मतलब हम इन जो गीता को पढ़ के उसको समझ के वाकई में हम उसको अपने जीवन में उतार कर इन खुशियों को सर महसूस कर सकते हैं। तो जो वर्तमान समय में जो हमारा जो नवयुवक वर्ग है या घर परिवार में, यदि हम इन सभी संस्कारों से, जो कि हमारे पुराने धर्म शास्त्र और पुराने जो हमारी जो पुरानी जो समाज
सामाजिक परिस्थितियां और जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो स्थापित जो विचार है, यदि हम उसको अपने घर में से ही आत्मसात कर लें और बच्चों को उन सब चीजों के बारे में समझाए, तो आज जो ये फ्रस्ट्रेशन है और जो ये बहुत जल्दी, जैसे परसों जो आपका जो ये इंटरनेशनल वेबिनार स्टार्ट हुआ, तो जो कॉन्फ्रेंस वाला वो था, प्रॉपर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसमें बहुत सब परेशान हो रहे थे और बहुत ज्यादा मतलब मन में बहुत अशांति वाला वातावरण हो रहा था। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं सर, टेक्निकल इश्यूज हैं, तो छोटी छोटी बातों से, चीजों से ना घबराकर हमको थोड़ा सा ऊपर उठकर विभिन्न जो समस्याओं से लड़ने की जो हमको जो शक्ति देती है, वो सर हमारा धर्मशास्त्र है, हमारा जो आंतरिक जो हमारी जो सुदृढ़ता है, हमारी चेतना है, वो ही सर हमको ये सब सिखाती है। तो मुझे ये लगता है कि हमको अपने घर से ही सर इसको फॉलो अप करना पड़ेगा, अपने बच्चों से सर इन सब चीजों की शुरुआत करनी पड़ेगी, जो कि हम बिल्कुल काफी, यदि अपन सच्चाई से अपने दिल में हाथ रख के पूछे, तो इन सब चीजों से हमारा जो समाज है वो दूर हटते जा रहा है ना। तो बस सर मैं इतना ही कहना चाह रही थी, अपनी बात रखना चाह रही थी, है ना। थैंक यू सर। हेलो। यू आर राइट, आप ठीक हैं। नेचुरली फैमिली से ही होता है सब कुछ। फैमिली में जो पेरेंट्स, क्योंकि फैमिली जब बच्चे यदि सर जैसे आजकल स्कूल जा रहे हैं, आप बड़े होने पर किसी को ये सब चीजें नहीं सिखा सकते हैं, है ना। मतलब एक बीज ही सर बड़ा होके वृक्ष बनता है, फल देता है। तो जब आप अच्छे बीज बोएंगे तभी सर फल मीठे होंगे, अच्छे होंगे। और स्कूल वगैरह में सर इतना ज्यादा उनके पास टाइम नहीं होता, इतना सिलेबस होता है कि उनका पूरा टाइम सिलेबस कंप्लीट कराने में ही निकल जाता है। तो जहाँ संस्कार की आंतरिक पीस की यदि हम बात करते हैं, तो सर वो हमारे घर से ही मिलेगा सर। जब माता पिता के बीच में आपस में अच्छे संबंध होंगे, तो बच्चा वही सब देखेगा, वही सब सीखेगा और घर से ही सब चीजों को आगे बढ़ा के आगे सर उसको लेकर जाएगा। तो ये एक सर बहुत जरूरी बात है ये, है ना। क्योंकि आजकल सर न्यू जनरेशन में एक विवाह देर से होना, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होना, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होना, अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए सब कुछ छोड़ देना, मतलब किसी को सर बहुत लाइफ में एडजस्टमेंट भी आपको कई बार पीस और शांति प्रदान करता है ना। तो एडजस्टमेंट ठीक है, आप सही कर रहे हैं। तो हमारी डिजायर्स है ना, डिजायर्स का भी वो हैप्पीनेस से डिजायर का काफी कॉम्बिनेशन है, तालमेल है सर, तालमेल है ना। हाँ, एक्सपेक्टेशंस को उसको लिमिट करना पड़ेगा, जब ही नेचुरली हम सर जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, ये तो एक पुरानी कहावत है ही। तो हमको अपनी इच्छाओं का सर कोई अंत नहीं है ना। तो जब तक हम अपनी इच्छाओं को, मतलब ये नहीं है कि अपनी इच्छा को मारना, अपनी इच्छा को पाने के लिए हर व्यक्ति कोशिश करता है, कोशिश करना चाहिए, लेकिन यदि वो कोशिशें कामयाब नहीं हो तो दुखी भी नहीं होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि आगे हमारे लिए और इससे अच्छा कुछ है, इससे बढ़कर भी कुछ है हमारे लिए। तो सर उसमें ये मतलब कई लोग विदेश और सब जगह घूम के आके भी यदि उनका फैमिली वातावरण यदि सर बहुत अच्छा नहीं है, तो कितना घूम लो आप, कितना कमा लो, आप कभी भी आंतरिक रूप से खुश नहीं हो पाओगे। लेकिन यदि आप कम कमा रहे हो, आपका परिवार सुखी है, आपके बच्चे सुखी है, घर में शांति है, तो मेरे ख्याल से सर सबसे बड़ा सुखी आदमी वही है ना। आप ठीक कहा, वही है कि उसमें बाहर जा रहे हैं, बाहर जाते हैं घूमने, पैसा कमाने। लेकिन हम देखते हैं कि मैं मेरे आसपास में देखे ये चुके जो स्टूडेंट बेचारे प्रोफेसर हैं और उनके वाइफ हस्बैंड के लिए वो कमा रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे अमेरिका में हैं, जर्मनी में हैं, कभी कभी साल 2 साल में आते हैं, वो सफर करते हैं। लेकिन बच्चे ये है ना, हमने पैसों को भेज दिया लेकिन हमने अपनी लाइफ को नहीं जी पाए। पैसा और ये वो अचीवमेंट करना है, वो तो सेक्शन है कि आप कितना चीज में सेटिस्फाई। एक चपाती आप घी की खा लीजिए या पूरी खा लीजिए, बहुत से खाने वाले सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत सी रोटी खाने, दाल रोटी खा लिया। बिल्कुल सही बोल रहे सर आप।
हाँ, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। एक जो 10 भोजन व्यंजन कर रहा है, अच्छी डाइनिंग टेबल खा रहा है, लेकिन वो शुगर की दवाई खा रहा है, डिप्रेशन की खा रहा है, ब्लड प्रेशर की खा रहा है, तो ही इज नॉट हैप्पी। वो क्योंकि उसने हाँ कहीं हाँ हाँ अपना एरिया बढ़ा लिया ना, उसने अपना तो उसको हाँ बजे उठता है, 6 बजे आता है, 10 बजे 6 हाँ बजे आता है, 10 बजे आता है, बच्चों का पता नहीं, फैमिली का पता हाँ। नहीं। और सर जो ज्यादा कमा रहा है आज की डेट में सर, उसी ने बहुत सारी बीमारियां पाल के भी रखी है। आप अपनी कमाई का बहुत ज्यादा हिस्सा, जैसा कि दिग्विजय सर ने भी कहा कि हमारी जो पतंजलि है, योगा है और दूसरी जो चीजें हैं, उससे भी हम शांति का रास्ता ढूंढ सकते हैं। और म्यूजिक थेरेपी के बारे में सर उन्होंने बहुत अच्छा कहा। कई बार व्यक्ति बहुत डिप्रेशन में होता है, हमेशा आदमी का मूड एक जैसा नहीं होता है ना। लाइफ में हमेशा खुशियां नहीं आती हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, वैसे ही लाइफ में खुशियों के साथ दुख भी है, सारी चीजें हैं। लेकिन आप देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत दुखी होते हैं और हमने एक अच्छा सा म्यूजिक लगा लिया और वो म्यूजिक सुन लिया, तो वाकई में हम अपने आप को बहुत रिलैक्स पाते हैं। तो वो सर ने बहुत अच्छा म्यूजिक थेरेपी के बारे में बताया, जिसको कि सर मेरे ख्याल से भारत में बहुत से लोग फॉलो भी करते हैं, है ना दिग्विजय सिंह सर? हेलो। मैडम म्यूजिक तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं भी सुनता हूँ सुबह 1-2 घंटे जी। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको सर हम ज्यादा हाँ सर, हमारे यहाँ तो सर सुबह उठते ही एक मैं एक्चुअली साउथ इंडियन हूँ, तमिल बोलते हैं सर हम लोग घर में। हम लोग सर घर में तमिल बोलते हैं। तो सर हमारे यहाँ तो सुबह उठते ही विष्णु सहस्त्र नामम और एक सुप्रभातम करके साउथ में एक म्यूजिक बजता है। तो वो आप लगा लो सर एक बार, पूरा दिन आपका इतना बढ़िया लगता है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो सुनिए, भजन सुने सुबह सुबह आप कीर्तन सुनिए, तो इससे आपका ब्रेन ठीक रहेगा, पॉजिटिविटी डेवलप होगी, वेव्स आपको जो म्यूजिकल वेव्स निकलती ब्रेन में जाएंगे, आपको पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होगी आसपास आप। हाँ, ये वो तो सर यही बात है कि जैसे एक ग्लास में आधा ग्लास भरा हुआ अपन किसी से पूछे तो बहुत से लोग बोलेंगे कि आधा ग्लास खाली है, और बहुत लोग बोलेंगे कि आधा ग्लास भरा है। तो मतलब सर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी तो सर अपने ऊपर है। कई लोग नेगेटिव चीजों में ही भी अपने लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ढूंढ लेते हैं। तो सर सब व्यक्तियों की, आदमी की सोच है सर, ये सब हमारी सोच है। हम अपनी विपरीत परिस्थितियों को भी अपने लिए अनुकूल में परिवर्तित करने की शक्ति सर हमारे पास है। तो वो हमको करना चाहिए जीवन में, है ना दिग्विजय सिंह सर? ऐसा पीस इंटरनल है, पर्सनल है, पीस मैन टू मैन डिफर करता है। आप कितने सेल्फ कंटेंट हैं, आप मतलब कितने खुशी हैं, कितने आप सेटिस्फेक्शन है, हाँ, और बिल्कुल सही सर। इनर फीलिंग क्या है। तो ये मैन टू मैन है, और पीस की मार्केट में और माने बिकता है, नहीं तो फिर पैसे वाले लोग मार्केट से परचेज करते हैं। हाँ बिल्कुल सही सर। थैंक यू सर, थैंक यू दिग्विजय सिंह सर, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। हाय राजपूत जी, yes over. जी सर। Okay, thank you very much for healthy interaction and discussion. थैंक यू सर, थैंक यू दिग्विजय सिंह सर। जैसा कि अभी बात हो रही थी कि बहुत सारी जब हमारे आकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और हम बहुत सारी चीजों को एक साथ में लेकर चलने की कोशिश करते हैं, या हम बहुत ज्यादा चाहते हैं अपनी किसी भी चीज से, तो हमारी जो एक सोशल हार्मोनी होती है या पीस होता है या जो हैप्पीनेस होती है, वो कहीं ना कहीं सफर करती है। अब जैसे हमारा जो फर्स्ट डे का वेबिनार का जो फर्स्ट डे में था, तो उसमें हम लोग हमारा प्रयास था कि हम सारी रिकॉर्डिंग्स भी पूरी तरह से प्रॉपर चलती रहें। उसके अलावा हम फेसबुक स्ट्रीमिंग भी कर लें, हम यूट्यूब स्ट्रीमिंग भी कर लें, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो सब भी हो जाए। तो फाइनली हुआ ये कि लैपटॉप हैंग हो गया। इसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है
से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं इस तरह से कि हम बहुत सारी चीजें एक साथ में अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी लाइफ भी कहीं ना कहीं हैंग हो जाती है। और जब लाइफ हैंग हो जाती है तो ऑब्वियसली फिर शांत। Okay, thank you very much, Raj. Okay. अभी कोई और है जो अपना पेपर प्रेजेंट करना चाहते हो? क्योंकि मेरे ख्याल से काफी लोगों के पेपर प्रेजेंटेशन रह गए थे, तो यदि उनमें से अभी कोई अवेलेबल है और अपना पेपर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक कि आप अपना पेपर प्रेजेंट करें। कोई है अभी? कोई भी जो अपना पेपर जिनका पेपर प्रेजेंट होने का रह गया हो? अलका जैन मैम, आपका भी पेपर प्रेजेंट होना था।